Hello everyone. In this video we are dealing with 2.3 GRD data. In summary also, you know, GRD Tata, full name Jahangir Ratanji Dadabhai Tata, was born in 29 July 1904 and he was the fourth president, a chairman of Tata Groups. At the age of 34, in the year of 1938, he became a chairman of Tata Groups. He is a fourth chairman and is a well-known industrialist. The asset under his leadership, Tata asset climbed from 62 crore to more than 10,000 crore rupees in the year of 1990. He is a philanthropist and under his leadership, Tata Group entered in several companies like airlines, hotels, trucks, locomotives, soda ash, heavy chemicals to pharmaceuticals, financial services, tea, air conditioning to lipstick and perfume also. So his well-known achievement, okay, his well-known achievement is that he merged the 10 competitive cement company within one company that is called SCC Cement also, and he strengthened the existing business of Tata Group like steel, power, and hotel also. He is a well-known industrialist, well-known philanthropist, well-known patron of arts, culture also, and he take Tata Group on international map. He is a leader, okay. He is a global leader as well as motivator also. The same things we discuss in video number A. Now we discuss the same things here. He is a leader and motivator. He said that I am a democratic leader because I am dealing with 100 to 1000 peoples who are leading in different enterprises. Okay, sometimes they suppress me because it is a democratic country. Sometimes they are against my opinion, they suppress me. It is painful because we are living in democratic country. We respect their opinions, we respect their experience also, we follow their instruction also. It is sometimes it is painful, but it is necessary, it is a part of my leadership. Okay, he said that to be a leader you have got to lead being with affections. As a leader we should treat as each and every individual as a human being with affections, and under this cognitive atmosphere, under this supportive atmosphere, under this sustainable environment, under the guidance of JRD Tata, with the full support of JRD Tata, he developed a lot of entrepreneurs such as Sir Homi Modi, Sir Dalal, Ardeshir Dalal, Sir Jahangir Gandhi, Rusi Modi, Suman Mulgaonkar, and Darbari Seth. These are the well-known directors. These are the well-known chairmen. Sir Homi Modi, he is a chairman of Tata Steels. Sir Ardeshir Dalal, he is a chairman of Tata Chemicals. Sir Jahangir Gandhi, he is a chairman of Tata Finance. Rushi Modi, he also chairman of Tata Steel. Sumant Mulgaonkar, he is a chairman of Tata Motors. Darbari Seth, he is a chairman of Tata Powers. These are the well-known industrialists which is born under the leadership, under the kind guidance of JRD Tata, as well as well-known scientists like Homi Jahangir Baba, uh, lawyer like lawyer, economist, okay. Lawyer economics was born under the guidance of JRD Tata. He is a kind boss. He is a gentle boss. Other who created billions in wealth for the group and the country also. Okay, under his guidance, lot of people created billions of wealth for the Tata Group as well as our Indian nation also. Many person could flourish Tata Group. Lot of person, maybe lawyer हो, मे बी साइंटिस्ट हो, मे बी इकोनॉमिक्स हो, बहुत लोग उनके अंडर में पले हैं, बड़े हैं उन्होंने. फॉर एग्जाम्पल्स होमी जहांगीर भाभा वेल नोन साइंटिस्ट थे. ओके, इज अ वेल नोन साइंटिस्ट, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे. उनको अमेरिका से JRD टाटा ने बुलाया था और यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च पे उन्होंने रिसर्च किया और न्यूक्लियर वेपन्स भारत को दिया है. तो ऐसे बहुत लोग हैं. ओके, इकोनॉमिक्स है, साइंटिस्ट है, वेल नोन लॉयर्स है, उन्होंने
ओके। एडी श्रॉफ है, इस प्रकार के बहुत लोग हैं कि जिन्होंने उनको बड़ा किया है टाटा ने। टाटा's पर्सनल इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी, उनको टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। ही इज़ अ फाउंड ऑफ एविएटर, उनको एरोप्लेन चलाने में, ही इज़ अ फर्स्ट कमर्शियल पायलट। तो एरोप्लेन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, टाटा टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उनका जन्म 1968 में किया था। किसने किया था? जे.आर.डी. टाटा ने किया था। तो इस प्रकार के बहुत लोग हैं। टाटा's पर्सनल इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी इन 1950s and 60s spurred several group companies, spurred मतलब created, established several group of companies, particularly Tata Steel, Tata Chemicals to innovate in their field। और इस प्रकार की जो पुरानी कंपनी थी टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स को, उनको इनोवेट नया करने का काम जे.आर.डी. टाटा ने किया है। अ बिगिन बॉस, बिगिन मतलब अ काइंड, अ जेंटल बॉस थे वो, एक अच्छे काइंड हार्टेड पर्सन थे। देखो, द क्रक्स ऑफ एनी सक्सेसफुल लेबर पॉलिसी ले इन मेकिंग वर्कर्स फील वांटेड। यह क्रक्स है, क्रक्स मतलब की है लेबर पॉलिसी का, कि आपको लेबर खुश रहे तो आपका प्रोडक्शन लेवल अच्छा होता है। लेबर पॉलिसी ले इन मेकिंग वर्कर्स फील वांटेड, जो वर्कर्स को चाहिए, फॉर एग्जांपल लीव है, मैटरनिटी लीव है, मेडिक्लेम है, छुट्टी है, प्रमोशन है, बोनस है, स्कूल्स है, अकोमोडेशन है, बस फैसिलिटी, ये सब प्रकार की फैसिलिटी, इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, इस प्रकार की फैसिलिटी का निर्माण टाटा ने किया है। इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, ये भी टाटा की ही कंपनी थी बेटा। तो इस प्रकार का उन्होंने लेबर को जो चाहिए, उस प्रकार का लेबर को एक अच्छा सस्टेनेबल हैप्पी एटमोसफियर देने का प्रयास किया है। टाटा स्टील बिकम वन ऑफ द अर्लीस्ट कंपनी इन इंडिया टू हैव अ डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और टाटा स्टील सबसे बड़ा प्लांट है इंडिया का, टाटा स्टील जमशेदपुर में। ओके, जमशेदपुर में टाटा नगर करके बहुत बड़ा प्लांट है जमशेदपुर में। तो वो वेल नोन है अपने लिए, किसके लिए? डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। टाटा कमेंटेड, टाटा क्या बोलते हैं देखो, इफ आवर ऑपरेशन रिक्वायर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ से 30,000 मशीन टूल्स, वी वुड अनडाउटली हैव अ स्पेशल स्टाफ और डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर देम। यदि हमें 30,000 मशीन टूल चाहिए, मशीन चाहिए, तो उसके लिए हमें स्पेशल स्टाफ डिपार्टमेंट डेवलप करना पड़ेगा। टू कीप देम इन रिपेयर, उनके रिपेयर के लिए, रिप्लेस के लिए, रिप्लेस देम व्हेन नेसेसरी, मेंटेन देयर इफिशिएंसी, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डैमेज। देखो, 30,000 मशीन्स के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा हमें, किसके लिए? रिपेयर, रिप्लेस, मेंटेन देयर इफिशिएंसी, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डैमेज। इसके जगह पे यदि 30,000 ह्यूमन बींग्स ईच विथ माइंड एंड सोल ऑफ हिज ओन, 30,000 मशीन की जगह पे यदि हमने 30,000 ह्यूमन बींग्स को रिक्रूट किया, उनके पास माइंड है, उनका सोल्स है, उनको प्रोटेक्ट करने की, उनको मेंटेन करने की, उनकी इफिशियंसी इंप्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहती, बिकॉज ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग हैज़ अ सुप्रीम काइंड ऑफ मशीन, वो खुद का इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार की पॉलिसी थी जे.आर.डी. टाटा की लोगों के प्रति। जहांगीर रतन जी दादाभाई टाटा डाइड इन जेनेवा ऑन नवंबर 29, 1993। उनका मृत्यु हुआ है बेटा। जन्म हुआ था 29 सितंबर 1904 में, और डेथ हुई थी बेटा जेनेवा में नवंबर 29, 1993। जे.आर.डी. वॉज इंडियाज मोस्ट वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडिया के एक वेल नोन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो। His enormous contribution to the development of Indian industry and aviation in particular, एविएशन, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस, यह टाटा की देन है बेटा। इंडस्ट्री, टाटा स्टील से लेकर टीसीएस तक, ये सब इंडस्ट्री, उसमें लिपस्टिक से लेकर लैक्मे से लेकर टाइटन तक, फास्ट ट्रैक तक। फास्ट ट्रैक भी है टाटा का ही ब्रांड है। तो टाइटन, टाटा फास्ट ट्रैक, तनिक्स, ओके, टाटा स्टील, एसीसी सीमेंट, टाटा केमिकल्स, टाटा टी। तो इस प्रकार के जो वैरायटी ऑफ बिजनेस है, उनका निर्माण अंडर द गाइडेंस ऑफ जे.आर.डी. टाटा ने किया है। हिज इनॉर्मस कॉन्ट्रीब्यूशन, जे.आर.डी. was India's most well-known industrialist, and his enormous contribution to the development of Indian industry and aviation in particular, Indian industry में भी और aviation में भी। टाटा headed India's largest industrial conglomerate with uncommon success। conglomerate मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज, बहुत ग्रुप ऑफ कंपनीज है, एक ही कंपनी ने ग्रुप ऑफ कंपनीज, अननोन सक्सेस, सब कंपनी को एक
ऊंचाई पे लेने का काम जे.आर.डी. टाटा ने किया है. ही वॉज ऑल्सो मैन ऑफ ग्रेट सेंसिटिविटी एंड वॉज पेन्ड बाय द पॉवर्टी. He's a human, kind-hearted man, and he was very afraid about the poverty which is found in India. He want to do something for welfare of common Indians. वो कुछ कॉमन लोगों के लिए करना चाहते. He also was a philanthropist. Philanthropist means लोगों का भला करने वाला, लोगों की भलाई चाहने वाला. ही इज़ अ रियल फिलोंथ्रोपिस्ट. ही वांटेड इंडिया टू बी हैप्पी कंट्री. इंडिया को हैप्पी बनाना चाहता है. द एम ऑफ टाटा ग्रुप इज़, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि टाटा ग्रुप का एम क्या है? लोगों को खुशी बांटना, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट रिजनेबल दामों में देना और इंडिया को डेवलप बनाया ना, इंडिया को पावरफुल बनाना. यही एम टाटा ग्रुप का था और उसका रिप्रेजेंट जे.आर.डी. टाटा ने किया है. जे.आर.डी. टाटा के बाद रतन टाटा, जो टाटा नैनो वाले रतन टाटा, वो चेयरमैन बने और उन्होंने भी वो भी आज टाटा ट्रस्ट के माध्यम से लोगों का बहुत वेलफेयर करते हैं, डोनेट देते हैं और टाटा ग्रुप उसके लिए जाना जाता है. और पैट्रॉन, पैट्रॉन मीन्स इकोनॉमिकल प्रोवाइडर, पैसे देने वाला, लोगों को इकोनॉमिकल हेल्प करने वाला. फॉर एग्जांपल शिवा में किसने पैट्रॉन, शिवा का पैट्रॉन कौन था? कृष्णा वेदव्यास. तो यहाँ पे इंडिया के कल्चर से, आर्ट से, सिनेमा है, ड्रामा है, ओके, उनको, ओके, क्राफ्ट है, आर्टिस्ट है, उनको सबका पैट्रॉन, उनको इकोनॉमिकल हेल्प प्रोवाइड करने का काम ये टाटा ग्रुप ने किया है. अ पैट्रॉन ऑफ साइंस एंड द आर्ट. साइंस, फॉर एग्जांपल होमी जहांगीर भाभा अमेरिका से इंडिया में आए, किसके बदौलत आए? जे.आर.डी. टाटा. आर्ट, कल्चर, क्यूजिन एंड अ मैन विथ पैशन फॉर लिटरेचर. उनको पैशन थी किसके प्रति? लिटरेचर, आर्ट्स के प्रति. फास्ट कार, स्काइकिंग एंड फ्लाइंग. फ्लाइंग मतलब एविएशन का उनको बहुत पसंद था, आकाश में उड़ने का बहुत शौक था, फास्ट कार का उनको शौक था. इस प्रकार वो जे.आर.डी. टाटा थे, एक रियल ह्यूमन बीइंग, एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक काइंड हार्टेड मैन, एक फिलोंथ्रोपिस्ट कि जो इंडिया को पावरफुल बनाना चाहता है. इस प्रकार का बेटा यह रोज लेसन है जे.आर.डी. टाटा, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, कि जो टाटा ग्रुप के 4th चेयरमैन थे और उन्होंने टाटा ग्रुप को रिच, पावरफुल, वेल नोन, इंटरनेशनल फेम और नेम दिया है वो जे.आर.डी. टाटा. आई होप you can understand it. Next video we are dealing with question answer of the same prose lesson. Thank you.